subscribe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will go for the derivation of area of a triangle ABC. If we are given that a of x1 comma y1, b of x2 comma y2 and c of x3 comma y3 be the vertices of triangle ABC. We draw AP, BQ and C are perpendiculars on x-axis so that three trapezoid get formed. That is, trapezium first becomes ABQP, trapezium second is APRC, and third one is trapezium BQRC. What we observe here, if we go for the sum of the areas of two trapezoid, that is trapezium ABQP and APRC, we get the area of this whole region, including the area of a triangle. And in order to find the area of a triangle, what we do, we first of all we go for the sum of the areas of these two trapezium, so that we get the area of a whole region. And from this sum, if we subtract area of trapezium BQRC, the remaining portion will give us the area of a triangle ABC with vertices, the coordinates x1 comma y1, b of x2 comma y2 and c of x3 comma y3. And we know that these are three trapezium, and we must know what the area of a trapezium is. Area of trapezium is equal to half of sum of parallel sides. And you better know what parallel sides here are. Into distance between them. उनके दरमियान जो distance है. Now we have to find the sides of this trapezium. These trapezoid. That is, for side BQ we know that it is equal to BQ, it is equal to Y2. तो यहाँ पे अगर पूरे AP की बात की जाए, ये Y1 के बराबर है और CR है बराबर Y3. अब डिस्टेंस बिटवीन देम के बारे में, जो साइड्स है, जो डिस्टेंस उनके दरमियान है, अगर OQ की बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक जो इसका एब्सिस है दैट इज x2, पूरा जो यहां से यहां तक है दैट इज y1, सॉरी x1. हाँ, तो यहां से यहां तक पूरी जो डिस्टेंस है दैट इज x3. हाँ, हमने QP निकालना है. वी नो दैट OQ प्लस QP इक्वल्स टू OP. OQ दैट इज OQ प्लस QP है बराबर OP के. That is x2 plus qp equals to x1. That is qp equals to x1 minus x2. तो इन दो के दरमियान, पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, that is x1 minus x2. क्लियर? अब for this very parallel side we know that यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस x1 है, तो that is OP plus PR है बराबर OR के. तो OP पूरा जो है दैट इज x1 प्लस PR we have to find equals to x3, दैट इज PR equals to x3 minus x1. तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इट इज x3 minus x1. अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है थर्ड वाली ट्रापेजियम की, पैरेलल साइड्स की, तो वो है बराबर OQ प्लस QR हाँ इक्वल्स टू OR. तो OQ है x2 प्लस QR वी हैव टू डिटरमाइन इक्वल्स टू OR जो पूरी डिस्टेंस है दैट इज x3, दैट इज QR इक्वल्स टू x3 माइनस x2. तो वी कैन हियर राइट इट एज x3 माइनस x2. हाँ, पूरी जो यहाँ से x3 माइनस x2. क्लियर? x3 माइनस x2. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की ओर चले जाते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या डेरिवेशन भी हम लिख सकते हैं. हमने क्या काम किया, लेट A of x1 comma y1 comma b of x2 comma y2 and c of x3 comma y3 be the vertices
of triangle ABC. हमने क्या किया? We take A of x1, y1, B of x2, y2 and C of x3, y3 as the vertices of triangle ABC. और उसके बाद हमने क्या किया? Draw AP, BQ and C are perpendiculars on x-axis and you better know that so that three trapezoid get formed. तो mention करने की जरूरत नहीं है. Therefore we know that area of triangle ABC equals to किसके बराबर है? Area of trapezium first. Area of trap कौन सी ट्रेपेजियम? ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे APRC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो थर्ड है BQRC. एरिया ऑफ ट्रैप BQRC. वी नो दैट, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है बराबर हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस between them. Them means these two parallel sides. Clear? Now, for sides हमें पता है. Also हमें पता है. Also we know that हमें पता है कि AP equals to y1, BQ equals to y2 and CR equals to y3 and और हमें पता है OQ plus QP equals to OP, that is OQ का वैल्यू है x2 plus QP equals to x1, that is QP equals to x1 minus x2. क्लियर? हाईलाइट कर सकते हैं थोड़ा सा. वी नो दैट OQ प्लस QP इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू OP, तो दैट इज OQ प्लस QP इक्वल्स टू OP, दैट इज x2 प्लस QP इक्वल्स टू x1, दैट इज QP इक्वल्स टू x1 माइनस x2. क्लियर? कामा आल्सो है. अब हमें ये साइड निकला, अब हमें ये वाली डिस्टेंस निकाली यहां से यहां तक, that is OP plus PR equals to OP plus PR equals to OR. OP है हमारे पास x1 plus PR equals to x3, that is PR है बराबर x3 minus x1. ये भी क्लियर हुआ. और रिमेनिंग जो थर्ड वाली ट्रेपेजियम है तो वहां पे उसके लिए हमें पता है OQ प्लस QR इक्वल्स टू OR. OQ दैट इज x2 प्लस QR जो हमें निकालना है हमें चाहिए इक्वल्स टू OR जो है दैट इज x3, that is QR equals to x3 minus x2. Clear? Now we are with the sides and the distance parallel sides के बारे में हमें पता चला, और ये भी हमें पता चला आपके the distance between these parallel sides जो हमारे पास ट्रेपेजियम दिए गए हैं. Now we will substitute the values. तो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रैप इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज एरिया ऑफ ABC है बराबर 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड. इस ट्रेपेजियम ABQP की अगर बात की जाए, ABQP सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? BQ प्लस AP, BQ प्लस AP इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. अब डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो इनके दो के साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज QP पैरेलल साइड जो है, प्लस हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स
ट्रेपिज्म सेकंड की अगर बात की जाए दैट इज ए पी प्लस सी आर, ए पी प्लस सी आर इंटू जो डिस्टेंस इनके दरमियान है दैट इज पी आर। तो इनमें इन दो के ऐड करके इनमें से हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म थर्ड, दैट इज ट्रेपिज्म थर्ड के सम ऑफ हाफ ऑफ माइनस यहाँ पे है बाय क्वेश्चन। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की अगर बात की जाए दैट इज बी क्यू प्लस यहाँ पे है सी आर इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम है क्यू आर। क्लियर? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो अगर तीनों ट्रेपिज्म थ्री ट्रेपिज्म्स की बात की जाए तो एक साइड में कॉमन, एक यहाँ पे हाफ हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। लास्ट पे लिखेंगे फिर। तो दैट इज वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इसको बाहर निकालते हैं, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है that is we can write it as that is BQ plus AP into QP plus हाफ बाहर निकाला AP plus CR into PR minus BQ plus CR into QR। clear? now we will substitute the values। अब हम उनको अपने वैल्यू साइड्स के वैल्यूज दे देते हैं, कौन साइड किसके बराबर है। So that is we can write as area of ABC equals to half of, तो BQ का वैल्यू जो है BQ that is Y2 plus Y1 into QP that is X1 minus X2 plus, यहाँ पे अगर बात की जाए AP की तो AP है Y1 plus y3 into distance between these two sides that is x3 minus x1, तो बीच में माइनस है, into यहाँ पे अगर बात की जाए BQ की that is y2 plus CR y3 into distance between them that is x3 minus x2। क्लियर? हाँ, अब इसके आगे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले x1 वाले लिखेंगे दैट इज x1 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y1, या प्लस यहाँ पे हम इन ऑर्डर ला सकते हैं x3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3, और इसको इन ऑर्डर ला सकते हैं माइनस इंटू x3 माइनस x2 इंटू यहाँ पे y2 प्लस y3। क्लियर? हाँ, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनका, और इसके बाद हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 प्लस y1 माइनस x2 से भी मल्टीप्लाई है y2 प्लस y1 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3 माइनस इंटू, यहाँ पे सब माइनस है तो बाद में हम इस माइनस से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज x3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x3 इंटू y2 प्लस y3, हाँ माइनस x2, या यहाँ पे नीचे आते हैं, हाँ यहाँ ही लिखते हैं माइनस x2 इंटू y2 प्लस y3, तो ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं। हाँ, इसके बदले हम लिख सकते हैं आप सॉल्व करके दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 x1 y2 प्लस x1 y1, हाँ माइनस इंटू प्लस क्या हुआ माइनस x2 y2
माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस एक्स 2y1। हाँ, इसके बाद है प्लस एक्स 3y1 प्लस एक्स 3y3। हाँ, माइनस एक्स 1y3 एक्स 1y1 माइनस एक्स 1y3 माइनस, यहाँ पे वैसे ही रख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। एक्स 3y2 प्लस एक्स 3y3 y3 माइनस एक्स 2y2। हाँ, इसके बाद है माइनस एक्स 2y3 माइनस एक्स 2y3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई कैंसिल मत हो जाएगा। देखो यहाँ पे है माइनस x1y1 प्लस x1y1, x1y1 और x1y1 क्लियर। हाँ, तो वहाँ पे रिमेनिंग क्या रहता, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1y2 माइनस x2y2 माइनस x2y1 प्लस x3y1 प्लस x3y3 माइनस x1y3 माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस x3y2 माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस x3y3 माइनस माइनस हो गया प्लस x2y2। तो उसके बाद रिमेनिंग है माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस x2y3। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो x1y2 या x2y2 माइनस है और x2y2 प्लस है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, प्लस x3y3 और माइनस x3y3, x3y3 और माइनस x3y3। नाउ जो रिमेनिंग है हम उनको अब लेते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब यहाँ पे देखते हैं x1y2 और x1y के साथ और कोई है x1 वाला। तो यहाँ पे देखते हैं x1y2 एक हमने ये लिया और यहाँ पे x1y3 माइनस x1y3, इसके बाद प्लस है। देखो x2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्लस x2y3 हमने ये लिया और यहाँ पे इन ऑर्डर लाया माइनस x2y1 प्लस x3y1 ये वाला आया और यहाँ पे अगर x3y2 की बात की जाए तो माइनस x3y2 है। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन मेथड कोई, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, देखो बेटा यहाँ पे भी x1 है और यहाँ पे भी x1 है, दैट इज x1 इंटू y2 माइनस y3। क्लियर। अब यहाँ पे x2 है, यहाँ पे भी x2 है, प्लस x2 को हमने जब बाहर निकाला यहाँ पे रहता है माइनस y3 माइनस y1 प्लस, अब यहाँ पे x3 को जब हम कॉमन निकालेंगे इट बिकम्स y1 माइनस y2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ, तो यहाँ में पता चल जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है बराबर 1/2 ऑफ x1 that is abscissa of coordinate A, that is vertice A into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। अब अगर आपको याद रखना होगा तो देखो यहाँ पे x1 तो 1 का अगर हम ऐड करते हैं तो हमने y पे जाना है तो y का 2 आएगा, तो इसका ऐड जब हम करेंगे सबट्रैक्ट इसमें होगा y3। क्लियर। x2 की अगर बात की जाए तो x2 के बाद वहां पे y का ऐड करने के बाद 3 आएगा तो y वाला आएगा तो y3 माइनस, तो 3 के बाद 1 पे चला जाएगा माइनस y1 और यहाँ पे x फिर से ऐड किया 1 2 और यहाँ पे क्या गया 3, तो 3 वहां पे 3 4 नहीं है तो 1 पे वापस आ जाएंगे माइनस y2। देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, which is the required area of triangle ABC. And in the next lecture we will go for the exercise number 7.3, the coordinate geometry, and hope that in that very video lecture we will complete unit number 7 and
and thereafter we will go towards the trigonometry. That is very important unit and is the highest mark scoring unit of 10th class. Hope that you enjoy, and please go for the like button, subscribe the channel to get the updates, and hope that you all will be fine and you are enjoying.